استاد کی مشہور معروف انجمن دستہ معصومیہ آمدن ہے کہ نام آنے اسی نظری کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البصري الأبصري الاتحادي الدافع بإنشاء الأباطيل والداعي لصلاة الأغاليل مولد الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حسن بن علي عليه السلام لا يوم كيوم يا أبا عبد الله عزاداران سید الشہداء ماتمداران امام حسین جس بستی کے مومنین اور قرب و جوار سے آئے ہوئے عزاداران سید الشہداء مومنین و مومنات یقیناً یہ ذکر حسین یاد حسین میں اتنی کشش ہے کہ موسم کوئی بھی ہو زمانہ کوئی بھی ہو وقت کوئی بھی ہو حسین کا ذکر حسین کی بات حسین کا تذکرہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے 2 سال کووڈ-19 میں دنیا نے دیکھا کہ بظاہر مجمع تو کم ہوئے لیکن حسین کے ذکر کے دائرے میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ حسین کے ذکر کا دائرہ بڑھتا چلا گیا کیوں؟ اس لیے کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا عباس سے نام پر کے لہو سے کھلا ہوا اب بھی حسینیت کا عالم ہے کھلا یہ تاریخ 24 سفر کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشروں کے مزاج ہیں پہلی سے 10ویں محرم تک شہدائے کربلا کی یاد ہوتی ہے 11ویں محرم سے 20ویں محرم تک پھر اسیروں کی یاد ہوتی ہے پھر 21ویں محرم سے پھر 30 محرم تک پھر چوتھے امام کی یاد ہوتی ہے پھر پہلی سفر سے 40 کی یاد شروع ہو جاتی ہے اور پھر 21ویں سفر سے یقیناً ایک طرف یہ قافلہ رواں دواں ہے مدینے کی طرف وہ قافلہ جو بڑی شان سے نکلا تھا لیکن اب وہ کس انداز میں جا رہا ہے آپ نے ابھی ہماری کا سارا منظر دیکھا لیکن اسی دوران ہم اس گھر والے کے سید و سردار یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 سفر آ رہی ہے ابھی آپ اعلان سماعت فرما رہے تھے پروگرام مسلسل ہیں ایک انجمنیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنین ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اولاد کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی یاد بھی 28 سفر کو منائی جاتی ہے لیکن مرکز تو ذکر حسین ہے نا آپ کو پتا ہے ابھی مذاہب میں شروع نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کربلا ہے کیا یاد حسین ہے کیا ذکر حسین ہے کیا کہ جب امام حسن پر زہر کا اثر ہوا اور امام حسین اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر غمزدہ بھی ہیں اور متحیر بھی ہیں اور زہر کا اثر بھی ہے تو پتا ہے دوسرے امام نے امام حسن کو
यौम नहीं है। यानी एक इमाम शहीद हो रहा है, वो रहमत हक से बेबस हो रहा है, लेकिन अपने छोटे भाई जो खुद भी इमाम है उससे कह रहा है ला यौमा का यौम या अबा अब्दुल्लाह, है अबा अब्दुल्लाह आपके यौम जैसा किसी का यौम नहीं है। कहने का मकसद ये है, ये नारा तो हो सकता है कि कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्ज़िन करबला, लेकिन न हर रोज रोज़े आशूर हो सकता है, न हर जमीन करबला हो सकती है, इसलिए कि करबला एक है, हुसैन एक है, रोज रोज करबलाएं नहीं बना करती। और याद रखिएगा आयतुल्लाह हिरोमा वही जो खुरासानी दामद मऊद अली ने इस हदीस मुबारका को सामने रखकर कि ला यौमा का यौम या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह आपके यौम जैसा किसी का यौम नहीं है, यानी यौम आशूर जैसा कोई यौम नहीं है। तो आयतुल्लाह वहीद ने कहा कि अगर इमाम मासूम कहते कि आपके यौम जैसा किसी का यौम नहीं है, तो ज़माने ने जितने यौम भी देखे हैं किसी का यौम भी हुसैन के यौम जैसा नहीं हो सकता। यानी न आदम का यौम, न नूह का यौम, न इब्राहिम का यौम, न मूसा का यौम, न ईसा का यौम, कोई यौम भी हुसैन जैसा नहीं हो सकता और न दूसरी करबला हो सकती है। ठीक है, कहने वाले कहते रहे कि कब्ज़े हुसैन अस्ल में मर्ज़े यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि खुतबा ने तकरीरें भी की, उलमा ने बयानात भी दिए, शोरा ने शेर भी कहे कि रोज रोज करबला का क्या मतलब, करबला एक है, करबला एक है। कभी शायर ने कहा कि तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, नई नई करबलाएं बनाने की तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। मुझे पता है मजमा गर्मी की वजह से साया तलाश कर रहा है, लेकिन याद है करबला साए को नहीं धूप को तलाश करती है। मैं आपके जज्बों को सलाम करता हूँ, यकीनन दूर से खड़े हुए सब लोग मेरी कल्लत बयानी को सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है किस याद के लिए आप यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आप यहाँ पर आए हैं। तो तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, नई नई करबलाएं बनाने की तुम्हें फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। इस्लाम को करबला के बाद किसी करबला की फिक्र नहीं है, लेकिन याद करबला की फिक्र है, जिक्र करबला की फिक्र है। और यकीनन ये आपका जज्बा है जो याद करबला के लिए, जिक्र करबला के लिए यहाँ खिताब चला आया है, और यकीनन यही वो जज्बा है। और क्यों न हो, इसलिए कि आप हुसैनी हैं, आप अज़ादार हैं, आप चौथे इमाम के मानने वाले हैं। चौथे इमाम ने शाम में खुतबा देते हुए कहा था कि हमें 6 चीजें अदा की गई हैं और 7 चीजों में हमें फजीलत दी गई है। इल्म हमें अता किया गया, इल्म हमें अता किया गया, सहाबत बुजुर्गी हमें अता की गई, फसाहत हमें अता की गई, शुजाअत हमें अता की गई, और मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी गई। तो हमारे इमामों को हमारे ऊपर इतना एतबार है कि जो भी हमारा मोमिन है उसके दिल में हमारी मोहब्बत है, जो भी हमारा मोमिन है उसके दिल
मुझे बताएं, हम तो 11 इमामों की याद मनाते हैं, हम तो 11 इमामों का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या वजह है मौला अली के जिक्र के वक्त कोई आकर नहीं कहता कि हम भी अली की शहादत की याद मनाते हैं, इमाम हसन का भी हम ताबूत उठाएंगे, कोई आकर नहीं कहता हम भी इमाम हसन की याद मनाते हैं, हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी पूरा अशरा और खमसा किया, मुसलमानों में कोई नहीं आया या और किसी कौम में कोई निकल कर नहीं आया, हम भी चौथे इमाम को मानते हैं, न छठे इमाम के लिए न पांचवें इमाम के लिए, ये करबला ही तो है कि सब आकर कहते हैं हुसैन को हम भी मानते हैं, हुसैन को हम भी मानते हैं, हुसैन को हम भी मानते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है जो चाहने वाले हैं उनकी बात तो हम नहीं करते, लेकिन ये जिक्र हुसैन, नाम हुसैन का फायदा ये है कि जो यजीदी भी है वो भी अपने को यजीदी कहने पर तैयार नहीं है।
भूली से, इब्न ज़ियाद से किसी का रिश्ता नहीं है, तो उनको हम बुरा कह रहे हैं, तो किसी को बुरा मानने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब ये है कि ये जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के जिक्र का असर है कि बीवी ने खाली सफ़े अदा नहीं दिखाई, सफ़े अदा के जरिए से कातिलों को बेनकाब भी कर दिया। अब ये हुसैन के सजदे का जवाब है कि ख्वाजा अजमेरी ने कहा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, कीनत हुसैन, दीपनाथ हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद हफ्ता के बिनाए ला इलाहा हुसैन। यकीनन अगर हुसैन बिनाए ला इलाहा है तो याद रखिएगा, अगर जनाबे सैयदे सज्जाद और जनाबे ज़ैनब न होती तो करबला गूंगे का आग हो जाती, किसी को पता भी न चलता कि करबला में क्या हुआ। यह कमाल है जनाबे सैयदे सज्जाद और जनाबे ज़ैनब का, जिन्होंने असीरी इख्तियार करके शाम तक जाकर कातिलों को इस तरह से बेनकाब किया। और आपको बेहदा नहीं है, ये कातिलों को बेनकाब करने का प्लेटफॉर्म है। यही वजह है कि खुर्शीद काली पूरी ने कहा कि बनाए दीन की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी वही इनकार ज़ैनब है। अदब से 10 बस्ता अर्थ है कि ख्वाजा की खिदमत में कि बिलाए ला इलाहा में भी हिस्सेदार ज़ैनब, बिलाए ला इलाहा में भी हिस्सेदार ज़ैनब है। और एक बात याद रखिएगा, हमारे इमाम मजलूम है, मजबूर नहीं है। आखिरी बात, करबला क्या है? हमारे इमाम मजलूम है, मजबूर नहीं है। क्यों? इसलिए कि यजीद जैसा जालिम, यजीद जैसा जाबिर, यजीद जैसा मुस्तबीर कौन नहीं जानता यजीद क्या है, जो करबला तक अहले बैत के आसार को खत्म करने की कोशिश कर रहा। वो शाम में क्या नहीं कर सकता, तो हुक्म रिहाई के बाद जब पैगाम लाए हैं चौथे इमाम, तो क्योंकि अम्मा हम आजाद हो गए, ने किया था तो हम जुलजनाब पर आमद करते हैं। अली असगर का झूला इसलिए कि माँ ख्यालों में झूला झुलाती थी, हाय मेरा असगर, हाय मेरा असगर, हाँ अज़गारो। तो ये सारे मनाज़िर इसलिए हैं ताकि हमें करबला याद आ जाए। लेकिन जो पहली मजलिस मुनक़िद हुई है उसके तबरुकात का आपको पता है। जब बीबी ज़ैनब ने शाम में फर्श अदा बिछाई है तो वहाँ जिस तरह के तबरुकात नहीं, वहाँ तो तश्त में रखे हुए सर आ रहे थे। कभी किसी का सर आ रहा था, कभी किसी का सर आ रहा था। एक एक बीबी आगे बढ़कर एक एक सर को ले रही थी, लेकिन जब एक तश्त में रखे हुए 2 सर आए, उनका लेने वाला कोई नहीं। आप समझ गए होंगे ये कौन है? ये बीबी ज़ैनब है, जिनके बच्चों के ये सर हैं। लेकिन किसी ने कहा क्या इन बच्चों की माँ नहीं है? जनाबे ज़ैनब ने तड़प कर कहा कि इन बच्चों की दुखिया माँ ज़ैनब है तो, लेकिन ज़ैनब अपने हुसैन का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे? ज़ैनब अपने अकबर का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे? ज़ैनब अपने हुसैन का मातम करे? हाँ अज़ादारों, हाँ कई दिन तक मातम हुआ। अब आपका क्या ख्याल है? देखिए जो भी करबला जाता है, बहुत लोग जा रहे हैं माशाअल्लाह से, अज़ादारों जो भी करबला जाता है आखिरी मर्तबा जब आने लगता है ना तो जाली पकड़ कर या दूर से कहता है कि मौला फिर बुलाइएगा, मौला फिर बुलाइएगा। खुशा नसीब उनका जो करबला गए हैं और करबला से वापस आ रहे हैं। लेकिन अज़ादारों अगर आपका हमारा दिल चाहता है कि हम दोबारा करबला जाएं तो क्या बीबी सकीना की तमन्ना न होगी? लेकिन अज़ादारों सब लोगों ने दोबारा जाकर करबला में बनी हुई कब्रें देखी हैं, लेकिन एक बच्ची है जो ये तसव्वुर लेकर आ गई कि मेरे बाबा का लाशा, मेरे चचा का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा है। अल्लाह मसाइब के रुख बहुत हैं, मैं एक एक जुमले दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। यकीनन जब तबरुकात आए होंगे तो सरों के बाद चादरें आई होगी। जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को चादर दी होगी, ये तुम्हारी चादर, ये तुम्हारी चादर, ये तुम्हारी
लीजिए। यकीनन आप मुसलसल उस काफले की याद दिला रहा हूँ जो इतना तवील सफर तय करके आया है, अब जाने लगा है तो एक चादर का लेने वाला कोई नहीं, आगे आगे बीबी ज़ैनब, पीछे पीछे जनाबे सैयदे सज्जाद, कब्रे सकीना पर पहुंची सकीना, चादर आ गई। सकीना, हम करबला भी जा रहे हैं, मदीने भी जा रहे हैं। अदादारो, अजब नहीं, बीबी ने कहा फूफी अम्मा हम तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन करबला जाइए, हम तो नहीं जा रहे हैं, आप हमारियों पर बैठ कर जाइए, लेकिन मेरे बाबा का लाशा करबला में बेकफन पड़ा हुआ है, ये चादर मेरे बाबा के लाशे पर डाल दीजिएगा और कहिएगा बाबा जब सकीना 11वीं मुहर्रम को आ रही थी तो उसके सर पे चादर भी नहीं थी जो आपके लाशे पर डालती, अब सकीना तो नहीं आई, चादर आई है। जज़ाकुम रब्बुकुम। जब भी सोचेंगे आप रोएंगे, क्या ख्याल है आपका? अजब नहीं, बीबी रबाब ने कहा होगा सकीना अगर असगर तुमसे भी छोटा न होता तो मैं तुम्हारी कब्र को अकेला न छोड़ती, लेकिन सकीना चूंकि करबला में असगर तुमसे भी छोटा है इसलिए मैं करबला जा रही हूँ बेटी। अगला जुमला सुनेंगे। अजब ने कब्र सकीना पर जनाबे ज़ैनब ने कहा होगा सकीना अगर भाई को जाकर रूदा के सफर सुनाना न होती, अगर नाना को जाकर मदीने में पुरसा देना न होता तो सकीना ज़ैनब तुम्हारी कब्र को अकेला न छोड़ती, लेकिन सकीना मैं वादा करती हूँ मैं न करबला में सोऊंगी न मदीने में सोऊंगी, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके दोबारा किसी शाम की सरजमीन पर आऊंगी और तुम्हारे ही पास आकर सो जाऊंगी ताकि जब शाम में सवार आए तो उसे याद आ जाए वो सकीना जिसको हुसैन ने सिकुड़ किया था, ज़ैनब आज भी शाम में उस सकीना को लिए हुए सो रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम। अजीजों घुट-घुट कर लगो। हाँ, अब ये काफिला चला है, करबला पहुंचा है। आपने मसाइब सुने होंगे इस दौरान कहीं न कहीं कि पहला ज़ाहिर जनाबे जाबिर है, लेकिन ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है करबला में। इन बीवियों ने अपने को ऊंट की पूंछ से कब्रों पर गिराया है, कहा है भैया ज़ैनब आ गई, भैया ज़ैनब आ गई, आपका दीन तो बचा नहीं लेकिन शर्मिंदा है, भैया सब आए हैं सकीना नहीं आई। जज़ाकुम रब्बुकुम। भैया सब आए हैं सकीना नहीं आई। अदादारो, अब ये लुटा हुआ काफिला चलने लगा है ना, तो 7 दिन तक शायद यही वो दिन हो जब ये काफिला हमारियों के पास पहुंचकर मातम कर रहा हो, रो रहा हो, करबला में कोहराम बरपा हो। 3 या 7 दिन के बाद ये काफिला चलने लगा तो किसी बीबी ने जाकर जनाबे ज़ैनब से कहा कोई मुअज़्ज़मा कब्र हुसैन पर बैठी हुई रो रही है, गिरिया कर रही है, वो चलने को तैयार नहीं है। जनाबे ज़ैनब आई, कहा बीबी चलो, तुम्हारी वजह से काफिला चलने में ताखीर हो रही है। कोई जवाब न मिला। कहा मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ। जैसे ही ये हवाले सुने अदादारो एक मरतबा सर को उठाया, अब तो जनाबे ज़ैनब ने देखा भाभी रवा, क्या भाभी चलिए क्यों नहीं चल रही हैं आप? कहा आपके बच्चे मारे गए। कहा भाभी आपको खबर है? कहा हमारे भी बच्चे मारे गए। कहा हाँ, अली असगर यही है, सकीना है खाने में है। कहा आप मदीने जा रही हैं तो आपका कोई न कोई सहारा तो है। कहा अब्दुल्ला मदीने में मौजूद है। कहा फिर आप मदीने जाइए, ये रबाब किसके सहारे मदीने जाए? उसकी सकीना शाम में रह गई, उसका अगर बाप के पहलू में सो गया, मुझे तो इसी करबला में रहने दीजिए, अपने वाली का मातम कर लूं, अपने अगर को
उसकी याद अरिया बस्ती बस्ती मनाई जाती है। तो अगर आप आज उस अमारी में शरीक हो रहे हैं जो दोबारा वापस जा रही है, तो अगर मदीने से अमारी का मंजर आपके जहन में नहीं है तो अमारी समझ में नहीं आएगी। आपको पता है ना, जब मदीने से ये काफिला चलने लगा है ना, तो हुसैन भी हैं, अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं, बनी हाशिम भी हैं, बीबियां भी हमारी में हैं, सामान भी बाहर है, सब आ रहे हैं। सोहरा का दिल नहीं मानता, मरीज होने के बावजूद काफिले के पीछे असा का सहारा लेकर काफिले के पीछे पीछे चल रही है। मुझे ये नहीं बयान करना कि अजगर को सोहरा ने कैसे रोक रख दिया। अजीजों, मुझे इतना बताओ, किसी का भरा घर जा रहा हो, क्या उसका दिल मानेगा कि वो घर में बैठा रहे? मदीने में आज भी वो जगह मौजूद है जहां तक सोहरा असा का सहारा लेकर काफिले को रुखसत करने आई थी। अली असगर से मिलने के बाद जाते हुए काफिले को बीबी सोहरा ने देखा, लेकिन जब 28वीं को जाते हुए काफिले को सोहरा ने देखा ना, तो वो काफिला दूर तक फैला हुआ था। घोड़े पर सवार मर्द थे, बीबियां हमारियों में थी, सबका सामान था। ये लंबा काफिला बीबी सोहरा ने जाते हुए देखा है, लेकिन